The question is, what is El Nino and how does it affect global climate, including the Indian monsoon? Discuss. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now this question is asked within the word limit of 250 words. So this is a 15 marker question, and we have already discussed when a question is asked under 15 marks, what you need to do is to answer it in a little bit detail compared to the 10 marker question. If you'll ask from which part of the GS main syllabus this question is asked, so this is asked from General Studies paper 1, so basically General Studies 1, and you already know that the geography is in that syllabus. And if you'll find a topic, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. So basically this is a global geophysical phenomena, El Nino. It happens somewhere in, this phenomena is observed in the coast of the South America, but it influences the global climate also. So we are going to discuss about all these things and we are going to address every requirement of this question. Now if you'll categorize the difficulty of this question, so you can put this question in L1 because this is a pretty basic question and you have already read a lot of things about El Nino, La Nina and things like these while you prepare for prelims. So there is no dearth of information while answering this question, but what you need to do is to put all those informations in a synchronized manner such that every requirement of this question is addressed. Now there is a point of caution specifically for the geography optional students. What you need to keep in mind that this question is asked in general studies. This is not an optional paper. So you must be knowing a lot of things about El Nino, and most of the time students get very overwhelmed seeing these kind of questions, easy questions you may say, and they invest more than 12 to 14 minutes in this question by answering it very in detail. But what I'm going to tell you that please don't invest more than 10 minutes in this question, because I have already told you that the maximum time that you can dedicate in a 15 marker question is 10 minutes. Now if you're dedicating more time in a particular question, then you are definitely going to lose time for some other questions. तो आप इसको ध्यान में रखिए. हो सकता है कि आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, but keep in mind the time limit. That is the main, you may say the मूल मंत्र है for cracking mains. टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी टाइम लिमिट में रहते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करिए, क्योंकि आपको पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर मार्क्स इफ यू इन्वेस्ट मोर टाइम इन दिस क्वेश्चन. If you write an excellent answer, you are going to get marks somewhere around 7.5 to 8 marks. That is the maximum marks that you can expect that UPSC will grant you under 15 marker question. So now the first thing is to introduce the question to the examiner, that you have understood what the question is asking. तो आप बता सकते हैं कि El Nino phenomena क्या है. We have already read about all these things कि कैसे इसको regionally इसको El Nino का मतलब क्या होता है, the little boy or the Christ child, and this is the phenomena that was observed in the South American coast, same as La Nina. El Nino क्या है, is a climate phenomena characterized by warmer than average sea surface, इसको SST बोलते हैं, sea surface temperatures in the central and the eastern इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न जो आपका पैसिफिक रीजन है, यू हैव अ पैसिफिक ओशन, तो जो ईस्टर्न पार्ट एंड दी सेंट्रल पार्ट में जो सी सर्फेस टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाते हैं. एंड दिस इवेंट डजंट ऑकर एवरी ईयर, ये हर साल नहीं होता है. इस किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर इसको ऑब्जर्व किया था, जनरली 2 to 7 years इंटरवल पे इसको देखा जाता है. तो इज अ इवेंट, इज अ ग्लोबल फेनोमेना, और इसके वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ओवर. उसे ही हमें डिस्कस करना है. तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि एल नीनो क्या है, हाउ दिस फेनोमेना इज नेम्ड. तो बेसिकली दिस इज अ स्पेनिश ओरिजिन नेम, और इसके बारे में आपने बता दिया कि क्या है. तो एग्जामिनर को ये पता चल गया कि यू नो अबाउट द एल नीनो. बस इससे ज्यादा नहीं करना है. यू हैव टू मूव to the next part, that is the body. Now if you'll see what is El Nino and how does it affect global climate, तो first we have introduced what is El Nino. अब आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि how El Nino, ये समय क्या होता है या कंसेप्ट क्या है El Nino का. तो हमने बताया first we are going to see the points. Okay, now what I am going to tell you कि आप इस पॉइंट को whenever a question is asked in geography, आपको एक फायदा क्या है whenever a question is asked in under geography topic, आप फ्लो डायग्राम्स या आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं rather than using the point. Because points क्या होते हैं, बाकी क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है आपके पास, लेकिन ज्योग्राफी में यू कैन यूज
फ्रीक्वेंट डायग्राम्स, आप जो है आप सिर्फ जो है लाइन डायग्राम्स बना सकते हैं जैसे ज्योग्राफी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कॉन्टिनेंट का शेप बनाना है, अगर आप बना रहे हैं, इफ योर ड्राइंग इज गुड देन इट इज गोइंग टू गेट यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। बट अगर आप पूरे फेनोमेना को यूजिंग अ डायग्राम बताते हैं, इस सारी चीज को जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपका टाइम भी सेव करेगा एंड इट इज गोइंग टू फेच यू अ लिटिल बिट मोर मार्क्स। ठीक है, ये जो है देखा गया है बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा, जो थोड़े अच्छे डायग्राम्स यूज करते हैं उनको अच्छा मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बारे में समझ ले तो एल नीनो क्या है, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट टिपिकली ऑकर्स, हमने देखा इंटरवल पे, और एक लार्जर क्लाइमेटिक साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं एनजो, उसका एक ये पार्ट है। एल नीनो इज बेसिकली सदर्न ऑसिलेशन, जो एनजो इज दी आपका जो पूरा फिनोमेना है उसका एक पार्ट है एल नीनो। इसके बारे में आप कुछ और भी बता सकते हैं कि कैसे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग रीजन क्या है, आपको पता है कि जो साउथ अमेरिकन कोस्ट है वहां पर ऑल द टाइम अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, कोल्ड वाटर जो नीचे से है वो काफी ऊपर आते रहता है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू सडन क्लाइमेटिक रीजंस एंड ड्यू टू डिफरेंट रीजन वो अपवेलिंग रुक जाता है। जब अपवेलिंग रुकता है तो आपको पता है जो वहां पर जो कोल्ड टेम्परेचर होते थे वो रिलेटिवली लेस कोल्ड होते चले जाते हैं। मतलब उसका जो आप बोल सकते हैं कि जो कंट्रास्ट होता था आप ईस्टर्न पैसिफिक में एंड दी सेंट्रल पैसिफिक, वो कंट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर कम होता चला जाता है, जिसके वजह से जो हॉट आप बोल सकते हैं वार्म वाटर है दैट कीप ऑन मूविंग और टुवर्ड्स दी ईस्टर्न साइड, मतलब साउथ अमेरिका की तरफ जो है वार्म करंट्स और वार्म वाटर मूव्स, जिसके वजह से वहां पर अपवेलिंग रुक जाता है और बहुत दूसरे टाइप के कंडीशंस, वेदर कंडीशंस वहां पे देखने को मिलते हैं। मतलब वहां पर रेनफॉल होने लगता है जो कि नॉर्मल टाइम्स में नहीं देखा जाता। तो इस तरह से आप एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं एल नीनो के फेनोमेना को कि कैसे होता है और कैसे सडन अपवेलिंग रुक जाता है। तो आपने बता दिया कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एल नीनो, आपने एल नीनो को अच्छे से बता दिया। नाउ द सेकंड पार्ट दैट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। तो ग्लोबल क्लाइमेट को हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा इस डायग्राम को आप यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरू के पास अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग की वजह से क्या होता है, कोल्ड वाटर्स ऊपर आते हैं और आपको पता है नॉर्मल टाइम्स में यहाँ पर काफी ज्यादा फिशिंग भी देखने को मिलता है। तो ये जो है इस तरह के फेनोमेना जो है आपको देखने को मिलते हैं। एल नीनो के टाइम पे क्या होता है कि ये कोल्ड टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है और धीरे धीरे वार्म वाटर जो है दैट कीप ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट, और वहां पे फिर दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको वहां पर साइक्लोन देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है इन दी कोस्टल रीजन। तो इसको आपने डायग्राम से भी बता दिया तो ये आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट की हाउ इट अफेक्ट्स द ग्लोबल क्लाइमेट। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यू कैन डिवाइड दी ग्लोबल क्लाइमेट की बात हो रही है तो आप इसको रीजन्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे पैसिफिक ओशन एंड साउथ अमेरिका, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि यहां पर ही ये फेनोमेना देखने को मिलता है। तो यहां पर कैसे देखिए ट्रेड विंड्स वीकेंड हो सकते हैं। यहां पर जो है ड्यू टू एल नीनो क्या होता है, ट्रेड विंड्स हमने ऑलरेडी बात किया कि मैक्सिमम जो आपका ड्राइविंग फोर्स होता है जो विंड को ड्राइव करता है दैट इज द पीजीएफ, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर का जो कंट्रास्ट है वो कम हो जाता है। मतलब कोल्ड टेम्परेचर था वहां पर क्या होता है धीरे धीरे वार्म होने लगता है और वार्म तो ऑलरेडी वार्म है तो विंड्स जो है वो काफी वीक हो जाते हैं, वहां पर ट्रेड विंड्स मिल जाते हैं और इसके वजह से जो बहुत ज्यादा जो आपका बोलते हैं ना कि जो वार्म वाटर है वो शिफ्ट करने लगता है टुवर्ड्स दी सदर्न कोस्ट और द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। रिड्यूस्ड अपवेलिंग वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पर जो है क्या कि जो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है काफी कोल्ड वाटर अपवेलिंग होता है और यहाँ पर से न्यूट्रिएंट रिच जो डीप वाटर जो नीचे, क्योंकि आपको पता है डीप डाउन दी ओशन काफी हाई न्यूट्रिएंट वहां पर मिलता है, तो वो जब ऊपर आता है अपवेलिंग के से तो वहां पर बहुत अच्छा ग्राउंड बनता है फॉर फिशिंग। अब आप बोलेंगे फिशिंग कैसे होता है, तो आपने पढ़ा है कि जब आपका न्यूट्रिएंट्स ऊपर आता है तो वहां पर बहुत सारे प्लैंकटन्स डेवलप होते हैं तो उसकी वजह से फिश भी आते हैं, फिश का पॉपुलेशन बढ़ता है और वो आप जानते हैं जो पेरू चिले वाला रीजन है दैट इज अ वेरी वहां पर कमर्शियल फिशिंग बहुत ज्यादा होता है तो इस चीज को भी अफेक्ट करता है। तो आपने बता दिया कि पैसिफिक रीजन और साउथ अमेरिका कैसे अफेक्टेड होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। ये बहुत ही एक बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होता है क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में रेनफॉल साउथ अमेरिका में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ड्यूरिंग एल नीनो टाइम्स वहां पर एक्सेस रेनफॉल हो। तो आपने ये बता दिया। अब आप सेम बता सकते हैं विद नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो, वहां पर भी टेम्परेचर और जो है यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में उस समय आपको साइक्लोनिक टाइप कंडीशंस देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आपको जो है ये एक तरह से एल नीनो का बोल सकते हैं इफेक्ट है ऑन नॉर्थ अमेरिका। सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, पैसिफिक नॉर्थ, आप इस तरह से कुछ बता सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप इस रीजन में आपने एड्रेस कर दिया। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कैसे कि आप बीच का जो रीजन है जो आप बोल रहे हैं सेंट्रल पैसिफिक जो साउथ ईस्ट एशिया फिलीपींस के आसपास है वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो टाइफून प्रोन रीजन है जैसे फिलीपींस और जापान, वहां पर ज्यादा जो टाइफून जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इस रीजन में जिसको टाइफून्स बोलते हैं उनका फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ जाता है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट होता है, तो आप बता सकते हैं कि इंडियन मॉनसून जो क्या होता है वीकेंड हो जाता है ड्यूरिंग दी एल नीनो ईयर्स और जस्ट ऑपोजिट होता है लानिना में कि उस समय जो है मॉनसून काफी
ज्यादा हो जाता है और रेनफॉल काफी मतलब इंडिया में काफी ज्यादा देखा जाता है। तो एल नीनो बेसिकली ड्राई ईयर से एसोसिएट होता है। इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारा रीजन्स में जो है ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाता है व्हेन वी पास थ्रू एन एल नीनो ईयर। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं क्योंकि वीकनिंग ऑफ मॉनसून हो जाता है और जो क्योंकि आपका सेंट्रल पैसिफिक काफी ज्यादा हीट हो जाता है, तो अगेन बहुत ज्यादा विंड का जो प्रेशर जो पीजीएफ होता है वो बहुत वीक हो जाता है। इसके वजह से हमारा मॉनसून भी वीक हो जाता है। इसके बाद आप कुछ अटलांटिक बेसिन में भी क्या इससे जो इफेक्ट होता है उसको भी आप बता सकते हैं। तो सारा आपने बता दिया कि ग्लोबल फेनोमेना क्या होता है, ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट होते हैं। इसको आप पॉइंट्स में बता सकते हैं। रीजन बता दीजिए, एक रीजन, उसके विद इन दो तीन पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपने सारे रीजन को एड्रेस कर दिया है तो आपने क्वेश्चन के इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर दिया है। और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपसे कुछ पूछा भी नहीं गया, आप इसके बारे में कुछ वे फॉरवर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्टली बता दिया कि क्या है कंडीशंस, हाउ कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को वो कैसे अफेक्ट करता है। तो दो रिक्वायरमेंट था, उसको आपने एड्रेस कर दिया ना। द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। आप कंक्लूजन बता सकते हैं कि एल नीनो इज अ क्लाइमेटिक phenomena that influences global weather patterns including the Indian monsoon. It effects range from altered rainfall patterns to changes in temperatures and hurricane act. ठीक है, तो हमने यही डिस्कस किया पूरे क्वेश्चन में बॉडी में कि कैसे जो है इंडियन मॉनसून को वीक कर देता है और कैसे हरिकेन एक्टिविटीज को भी पैटर्न को चेंज कर देता है। जैसे सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल पैसिफिक रीजन है फिलीपींस के आसपास, वहां पर टाइफून्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और इंडिया के केस में जो है वो मॉनसून वीक हो जाता है। तो आपने ये सारे चीज बता दिया, तो आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया। दिस वाज अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी में, पर द कॉशियस क्या, आपको कॉशियस किस वे में रहना है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करिए एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि many of the students are giving mains। आप इस एक क्वेश्चन को लेकर डेली प्रैक्टिस करिए, आप इसका एक और अच्छा आंसर भी बना सकते हैं अपने से, एंड यू कैन सबमिट दैट आंसर इन आवर पोर्टल। इट विल बी वैल्यूएटेड बाय योर मेंटर। थैंक यू।